سبحان اللہ۔ جناب پیر سا اب کوئی آقا ہو نہیں سکتا، جناب پیر سا اب کوئی آقا ہو نہیں سکتا، یہ وہ آقا ہے جن کا مثل پیدا ہو نہیں سکتا۔ قسم اللہ کی لاکھوں سہاروں کا سہارا ہے، غلام غوث اعظم بے سہارا ہو نہیں سکتا، غلام غوث اعظم بے سہارا ہو نہیں سکتا۔ اسی اشعار کے صاحب ہیں، میں جناب محمد عبد المتین خان قادری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس نورانی جلسے سے خطاب فرما کر ہم سب کے دلوں کو نور سے منور مجلہ فرمائیں۔ جناب ریاض قادری صاحب، جناب متین قادری صاحب کی دلخوشی فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف ولہم یحزنون۔ وہاں آتی نہیں کوئی بلائے آسمان نازل، وہاں آتی نہیں کوئی بلائے آسمان نازل، جہاں اڑتا نظر آئے پرچم غوث اعظم۔ یہ دل، یہ آنکھیں، یہ جگر، یہ سر تمہارے ہیں غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم یا غوث اعظم۔ حضرت سراج دکن آفتاب خطابت مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ و مدد اللہ علی، صدر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت والجماعت، حضرت مولانا خطیب اہل سنت حضرت باقر علی صدیقی صاحب قبلہ، جناب محمد مجیب علی صاحب، شہزادے غوث اعظم کلیم اللہ جہاں آبادی حضرت حامد حسن کلیمی صاحب قبلہ، اراکین کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت والجماعت، حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت والجماعت حضرت آفتاب خطابت کی صدارت میں 39 سال سے مسلسل ہمارے عقیدے کی درستگی کے لیے اور کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کے علماء اور اراکین بلا معاوضہ ہر مہینے کی مناسبت سے آپ لوگوں تک پہنچتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا سنی عقیدہ مضبوط ہو، جو ڈاماڈول ہے وہ عقیدے سے سیدھے عقیدے پہ آ جائے۔ یہی آفتاب خطابت کی محنت ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کسی مقرر کو بلائے یا کسی اور نعت خواں کو بلائے تو سواری خرچ کے علاوہ نذرانہ پوچھتے ہیں، لیکن مرکزی مجلس اہل سنت جماعت آفتاب خطابت اپنے جیب سے خرچہ کر کر آپ کو عقیدے اللہ اس کے رسول کی محبت دینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ صرف ہماری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہوتی ہے کہ صرف ڈیرے کا اور میک کا انتظام کریے۔ آفتاب خطابت تو چائے بھی مت پلاؤ، ہم اللہ اس کے رسول کی بات کر کے چلے جاتے ہیں، یہ ہمارا اصرار ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کے 12 جلسے منعقد ہوتے ہیں۔ 11 جلسے حیدرآباد کے محلے، مساجد، اضلاع میں کہیں نہ کہیں ایک ایک دن جلسہ منعقد ہوتا ہے۔
12वां जलसा मिलादुल नबी के दिन खिलवत मैदान में मुनक्किद होता है। इसी तरीके से रबी सानी के महीना 11वीं के महीने में 11 जलसे मुनक्किद होते हैं। 10 जलसे हैदराबाद और अजलाओं में होते हैं और 11वां जलसा जामा मस्जिद अफजलगंज में इतवार के दिन सुबह 10 बजे मुनक्किद होता है। ये आज सूरज गार्डन का जलसा 9वां जलसा है और इतवार के दिन 11वां जलसा जामा मस्जिद अफजलगंज में है। इसी तरीके से रजब के महीने में 6 रोजा जलसे मुनक्किद होते हैं और 5 जलसे मुख्तलिफ मुकामात पे होते हैं। 6वां जलसा जामा मस्जिद अफजलगंज में यह आफ्ताब खिताबत की बेलौस खिदमत है और हम सुन्नियों को अपने अकीदे के सुधार की दावत दे रहे हैं। आज माहौल पैदा हो रहा है, कैसे कैसे क्या नए नए मसाइल हो रहे हैं। आज का यह जलसा सरकार गौसे आजम पिराने पीर रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान और अजमत के लिए मुनक्किद किया गया। एक दफे हजरत सुहेल इब्ने सुहेल रजी रहमतुल्लाह अलैह देखते हैं कि सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु एकाएक शहर से बाहर चले जाते हैं। लोगों ने उनको ढूंढते हैं तो मालूम होता है कि हजरत सरकार गौसे आजम दरियाए दजला के पास हैं। तो लोग वहां पर भी जाते हैं, हजरत सुहेल रहमतुल्लाह अलैह भी जाते हैं। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब देखा जाता है तो आप दरियाए दजला के अंदर हाथ रखे हुए हैं और दरिया के तमाम मछलियां आकर आपके हाथ को चूम रहे हैं। उतने में नमाज ज़ोहर का वक्त आता है। एकाएक तख्त सुलेमानी की तरह हवा में एक जानिमास बिछ जाती है और फिर नूरानी चेहरे वाले सफे बनाकर ठहर जाते हैं और उस जानिमास पर पहली सत्र में ये लिखा हुआ है, वो जानिमास सोने के तारों से और याकूत और जमरूद के से जड़ी हुई है और सरकार गौसे आजम मुसल्ले पर ठहरते हैं और उस जानिमास के ऊपर ये लिखा हुआ है पहली सतर में, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन वला हुम यहज़नून। दूसरी आयत में ये लिखा हुआ, दूसरी सतर में ये लिखा हुआ है, अस्सलामु अलैका या अहले बैत। तो मालूम हुआ कि जब सरकार गौसे आजम नमाज शुरू करते हैं तो आपके लबे मुबारक से हरे रंग का नूर आसमान की तरफ जाता है। जितने सफ में ठहरे हुए हैं उनकी कैफियत का ये आलम है कि मस्त है और मस्त होकर आमीन कह रहे हैं। उसके बाद नमाज खत्म होती है। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ अल्लाह, मैं तेरे दरबार में हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देकर दुआ करता हूं कि ऐ अल्लाह, मेरे मुरीदों के मुरीद जब तक ये गुनाहों से तौबा ना करे इनकी मौत ना आना। गैबी निदा आई, गौसुल आजम आपके मुरीदों के मुरीद क़यामत तक के जितने आपके सिलसिले में मुरीद होंगे इनको बगैर तौबा के मरने नहीं दिया जाएगा। ये सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु दारोगे जहन्नम से पूछते हैं कि ऐ दारोगे जहन्नम, तुम्हारे जहन्नम में मेरा कोई मुरीद है? तो जवाब मिलता है, ऐ गौसे आजम, आपके मुरीदों को जहन्नम से क्या काम। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, जो मेरे मुरीद से दुश्मनी करता है मैं
शेख अब्दुल कादिर जिलानी उसके दुश्मन का मुकाबला करता। तो आज हमारा अकीदा गौसे आजम पर मजबूत होना चाहिए। यही मरकजी मजलिस अहले सुन्नत जमात आफ्ताब खिताबत यही फरमाते हैं कि हमारा वास्ता औलिया अल्लाह से जुड़ जाए, अहले बैत से जुड़ जाए, सहाबा इकराम खुलफाए राशिदीन से और ताजदार मदीना से हमारा ऐसा रिश्ता हो जाए कि ऐसी मोहब्बत हो जाए कि खातिमा भी या रसूल अल्लाह बोलने पर हो जाए। यही मरकजी मजलिस अहले सुन्नत जमात आपको दावत देती है, आपको निचोड़ना चाहती है कि अपने अकीदे को सुधारो। सरकार गौसे आजम एक मुकाम पर फरमा रहे हैं कि मेरा मुरीद मशरिक में है और मैं मगरिब में हूं। अलमदद या शेख अब्दुल कादिर जिलानी पुकारता है तो मैं उसकी मदद के लिए पहुंच जाता हूं। तो अब अकीदा मजबूत हो के पुकारे तो मदद होती है। आज सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फुफिये का ये आलम है कि सरकार गौसे आजम का पुराना घर, पूरा खानदान, पूरा घराना विलायत वाला, करामत वाला है। एक दफे आपके फुफुए मोहतरमा के पास शहर में कहत आ गया, लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं, बारिश के लिए बेचैन हैं। तो मालूम हुआ कि सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की फुफ्फू के पास चले जाए। आपने झट से वजू बनाया, आंगन को झाड़ू दिए, देकर कहने लगे कि यार अल्लाह, मैंने आंगन को झाड़ू दे दी है, अब तू छिनका कर दे। तो पूरा घराना औलिया अल्लाह का विलायत वाला है, इसी वजह से औलिया अल्लाह से मोहब्बत करना, क्योंकि हमारा जिससे हमारी मोहब्बत होगी खातिमा उन्हीं से होगा। आपको खतीब अहले सुन्नत जमात को भी समात फरमाना है, आफ्ताब खिताबत को भी समात फरमाना है। गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं कि मेरे हाथ में पूरी 18,000 आलम, इंसानों का आलम, अजिन्ना का आलम, मलाइक का आलम, ऐसे 18,000 आलम राई के दाने के बराबर है। मैं जब चाहे जब जिस आलम में देखना हूं देख लेता हूं। ये सरकार गौसे आजम का आलम है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये विलायत अता फरमाई। लंबी तफसील है, एक एक वली के बारे में, गौसे आजम के बारे में गौर करेंगे। अगर मोहब्बत से अपने को अकीदे को देखेंगे तो बात समझ में आएगी। अगर दिल में बुग़्ज़ कुदूरत रखे तो ना कुरान समझ में आएगा, ना हदीस समझ में आएगी, ना अहले बैत का मुकाम समझ में आएगा, ना खुलफाए राशिदीन का मुकाम, ना औलिया अल्लाह से मोहब्बत होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।